Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn lesson number 17, which is a story number 2 from Hindi Reader Book of Grade 12, Tamil Nadu State Board. So the name of the story is Idgaha. Idgaha, it is the name of the story, and the story is all about the festival of Eid, how in Ramadan month this festival is going to be observed, and how the devotees will do the prayers and everything. Apart from that, here in this story, one small boy is there who is going to celebrate Eid in a different manner. So these are the things which are going to be narrated here. So सारांश कुछ इस प्रकार है। हमीद एक छोटा लड़का था। उसके माँ बाप मर गए थे। वह दादी को ही अपनी अम्मा समझता था। अमीना बूढ़ी हो गई थी, कुछ कमा ना पाती थी। किसी के यहाँ सिलाई करके और किसी के यहाँ मिठाइयाँ बनाकर 4 पैसे कमाती थी। So यहाँ पर here who is the main character? There are two characters. One is one grandmother whose name is Amina, and Hamid is the grandson of Amina. So Amina is very old lady, and she is having her grandson Hamid, and Hamid lost his parents very early age. सो हमीद बहुत ही छोटा लड़का है जिसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, और वो अपनी दादी को ही सब कुछ अपना समझता है, अपना माँ बाप सब समझता है। और वो जो दादी है उनकी नाम अमीना है, और वो बुढ़ी हो चुकी है, शी इज टू ओल्ड। सो ड्यू टू हर एज neither she can work anywhere, nor she is earning that much. So usually she used to uh, do some tailoring work, and somewhere she is making स्वीट्स। कहीं पे वो सिलाई का काम करती हैं, कहीं पे वो मिठाइयाँ बनाया करती हैं। सो ये जो दोनों चीजें हैं, मिठाई बनाने का काम या फिर सिलाई करने का काम, इसमें से इनकी उम्र इतना हो गया है कि वो इतना नहीं कर पाती हैं। सच बहुत ही कम पैसे वो कमाती थी। सो शी इज अर्निंग वेरी लेस अमाउंट। रमजान का त्योहार आया। मोहल्ले के बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्सुक थे। हमीद भी ईदगाह जाना चाहता था। वो छोटा था, भीड़ में गुम सकता था, इसलिए अमीना उसे भेजना नहीं चाहती थी। हमीद जिद करने लगा तो अमीना ने उसे जाने की अनुमति दे दी। So we know that usually Muslim people, they keep the fasting for 1 month after in Ramadan month. Then after the end of the Ramadan, they will celebrate Eid. It's a great festival, and all Muslim brothers, they have to gather, and they are at one place, and they have to pray to Allah together. So here also in the Ramjan month, when Eid festival is celebrating in their compound, Hamid also see he is very happy, and he wants to celebrate in a great manner. He wants to go for Idgah with other children, but in Idgah there will be heavy crowd. So Amina was very worried because Hamid is too small. So whether he will lost in this crowd, that's why she told Hamid not to go there. But Hamid in his childish nature, he requested, he was standing in his own decision that he wants to go for ईदगाह. So जो अमीना थी उनका एकमात्र सहारा ही ये हमीद था। हमीद बहुत छोटा बच्चा था। सो रमजान के महीने पे जब वो ईद पर्व मनाते हैं, तो वहाँ पे उनके मोहल्ले में जितने भी बच्चे थे वो सारे
ईदगाह जाना चाहते थे, सो हमीद भी उनके साथ ईदगाह जाना चाहता था, लेकिन हमीद इतना छोटा था कि ईदगाह में जितनी भीड़ होगी उसमें कहीं वो खो ना जाए, इसलिए अमीना डरती थी और वो मना करती थी पहले कि हमीद को तुम नहीं जाओ, लेकिन बाद में हमीद अपनी जिद पे अटल रहा तो अमीना को उसे अनुमति देनी पड़ी। She gave the permission to Hamid to go for ईदगाह। अमीना ने 3 पैसे देकर हमीद को ईदगाह में भेजा। हमीद अपने मित्रों के साथ ईदगाह गया। लड़कों ने कुछ खिलौने खरीदे, कुछ खरीद कर खाया। हमीद ने 3 पैसे देकर लोहे का एक चिमटा खरीदा। बाकी लड़के उसका मजाक करने लगे। So usually whenever the children will get some money, what they will do? They will go for buying some of their favorite toys, or some of the children they love to eat their favorite food. But here Amina sent Hamid with only 3 paisa, and Hamid, though he went with his friends, instead, unlike other kids, he didn't buy anything, neither to eat something nor any toys. So what he did, he just spent those money to buy one iron plus. So whenever he bought that iron plus, at that time other friends other children who went with along with him, they started to uh, pull his leg. So जब अमीना उसे हमीद को 3 पैसे देकर ईदगाह में भेजती है, तो हमीद अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जाता है। सभी वहाँ पे बच्चे, कोई बच्चा खिलौना खरीदता है, कोई बच्चा अपने मनपसंद का खाना खाता है, लेकिन हमीद क्या करता है, उन पैसों से वो एक लोहे का चिमटा खरीदता है। और जब वो लोहे का चिमटा खरीदता है तो ना ही वो कुछ खाता है, ना ही खिलौना खरीदता है। बाकी जो बच्चे उसके साथ गए थे वो उसके मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा बच्चा है जो कि चिमटा खरीद रहा है, क्योंकि बच्चों का चिमटा से कोई काम नहीं है। हमीद घर लौटकर अपनी दादी के पास गया। दादी ने उससे पूछा कि तुमने 3 पैसे से क्या किया? हमीद ने लोहे का चिमटा दिखाया तो अमीना को गुस्सा आया। वो हमीद को डांटने लगी। हमीद बोला कि तुम दबे में अपनी उंगली जला लेती हो ना, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। यह सुनकर अमीना हमीद को पुचकारने लगी। तो जब हमीद लौट कर आता है, whenever Hamid returned home, at that time his grandmother asked what you did with his money, because grandmother was expecting that her grandson might be buy some favorite food, and he ate, or he bought some toys for him. But instead of that, Hamid was showing that iron plus to his grandmother, and after seeing that iron plus, his grandmother was become very angry, and she started scolding him also. But later on, Hamid is telling that, oh my dear grandmother, whenever you are preparing food, so what happened whenever you are preparing food? Sometimes due to lack of this iron plus, you burn your fingers. That's why for your safety sake, I bought this iron plus. Whenever Amina heard these words from this little one, she was very emotion. Her emotions come out in terms of tears, and she started to loving her grandson very much. तो हमें जब अपने घर पर लौट कर आता है ईदगाह से, तो अमीना उसे खुश होकर पूछती है कि बेटे तुमने उन 3 पैसों का किया क्या? तो वो हमीद तभी उसे अपनी दादी को एक लोहे का चिमटा दिखाता है। तो जब वो लोहे का चिमटा दादी देखती है, अमीना देखती है, तो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नाती को डांटती है। लेकिन उसके बाद
वो बच्चा बोलता है कि छोटा सा बच्चा हमिद बोलता है कि दादी आप जब खाना बनाते हो तो इस लोहे के चिमटा ना होने के कारण आप अपना उंगली जला देती हो, तो आपको मैं इतना दुख में नहीं दे सकती हूँ। सी ही इज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, but he is loving his grandmother so much, तो because he lost his parents, उसने अपने माता पिता को खोया है और उस माता पिता की जगह पर उसने अपने दादी को ही देखा है। तो दादी अभी बुढ़ी हो गई है लेकिन उसे अपनी दादी का बहुत ख्याल है और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपने बारे में ना सोचकर अपने लिए कुछ खिलौना या फिर कुछ खाने की चीज ना लेकर अपने दादी के लिए एक चिमटा लेकर आता है। जब वो अपने दादी को बताता है तो दादी डांटते डांटते चुप हो जाती है और उसे बहुत प्यार करती है। So this is a great bonding between grandmother and grandson who loved each other very much. I hope children you understood the summary of this story Idgaha. So now comes to the question answer. ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? ईदगाह कहानी के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। रोजा क्यों रखते हैं? रोजा एक फास्टिंग होता है और ये मुसलमान लोग रखते हैं और रमजान महीने के जो पूरे 30 दिन होते हैं, 30 days in Ramjan month, so all the 30 days Musalman brothers sisters they used to keep fasting. So in that fasting they whatever they want to take food they have to take before the sunrise, and once the sun rises then they can't take anything, neither food nor water. So after sunsets they do the prayer, they do the namaz, then after that they have to take some food. सो रमजान के महीने में जो पूरे 30 दिन होते हैं मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, वो सूर्योदय के यानी सूर्य उदय से पहले जो खाना खाना होता है वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते हैं, ना ही कुछ पीते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और वे रात को क्या करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद खाना खाते हैं और जो भी अपनी इच्छाएं हैं उसे रोक कर संयम को पालने का ये एक नियम नबी के द्वारा बनाया गया है। यह नबी के बनाए गए 5 मुख्य मार्गों में के से एक है, इसलिए मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। हमीद का स्वभाव कैसा था? हमीद एक गरीब लड़का था, लेकिन वो स्वाभिमानी था। तो he was poor, but he was very his self-respect was everything for him. वो किसी से ना कुछ मांगता था, जो कुछ उसे मिलता था वो उसी में खुश हो जाता था। यही हमीद का स्वभाव था। हमीद दादी के लिए क्या उपहार लाया? हमीद दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लाया। हमीद किसके साथ रहता था? हमीद अपनी दादी के साथ, जिसका नाम अमीना था। हमीद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। हमीद माता पिता के साथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमीद के माता पिता मर चुके थे। His parents were died. So इसीलिए वो अपनी दादी के साथ रहता था। ईद कब मनाया जाता है? Whenever the Ramadan month completed, those 30 days completed, the next month, first day, they are going to celebrate as Eid. रमजान के पूरे 30 दिन मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। अगला महीना सब्बाल है, सो इसी महीने के पहले दिन को ईद मनाया जाता है। ईद के दिन लोग क्या करते हैं? ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं, वहाँ सब लोग घुटने टेक कर नमाज पढ़ते हैं, सब के सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। भातृत्व का एक सूत्र उन सबको एक लड़ी में पिरो देता है। नमाज के बाद लोग आपस में गले लगते हैं, उसके बाद दुकानों की ओर जाने लगते हैं। सो इन ईद what usually Muslim people will do, they will go to Idgah. Idgah is a place where all the Muslim brothers they gathered together. They gathered and they used to do namaz together. So everybody at a time they have to bow down their head in front of Allah, and again they have to come to their original position, or they can raise their head. So
like they do namaz, so they all together do it. And ये एक भाईचारा का दिन है जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं. They hug each other and they wish each other, and this is a festival of joy and happiness and brotherhood. And apart from that, usually however festivals will be celebrated, they purchase their favorite things. They will go to different shops for their whatever they want to do or purchase or eat. They are going to different shops. ईद का मौसम कैसा होता है? ईद का मौसम मनोहर और सुहावना होता है. बच्चे रोज ईद का नाम रटते रहते हैं. लोग टोपी और जूते की मरम्मत करने लगते हैं. जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है, we used to buy new dresses, so everybody was excited. Similarly, whenever Eid comes, everybody will be getting excited. They will buy all the children, they will be always speak about this festival in home and along with their friends, and they will purchase so many shoes, caps and all those things. ईदगाह कब जाते हैं? मुसलमान लोग ईद के दिन ईदगाह सुबह को ईदगाह जाते हैं. अमीना के दुख का कारण क्या था? और अमीना के दुख का क्या कारण था? अमीना का बेटा और बहू दोनों मर गए थे. अमीना का पोता हमीद उसी के साथ रहता था. वो सिर्फ 5 साल का था. गरीबी में अमीना मुसीबतों से लड़ रही थी. इतने में ईद आ गई तो हमीद के लिए कुछ पकवान भी बना ना सकी. उसके घर में दाना भी नहीं थे. यही अमीना के दुख का कारण था. So Amina is the name of that great old lady whose daughter-in-law and son died, but her grandson was living with her, and Hamid was only 5 years old, and Amina was very poor, and he was struggling to survive normal life because her earning was not that much. And in between that, Eid festival came. So usually, like other children also, she wants that her grandson should celebrate Eid, and she should prepare something good dishes for Hamid, but it was not possible due to that financial problem, due to that financial crisis, due to the less earning of Amina. So she was struggling to lead his life normally. That's why Amina was very sad. हमीद ने दादी से क्या कहा? हमीद ने दादी से कहा कि मैं सावधान होकर ईदगाह जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा. तुम मत डरो अम्मा, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा. So whenever Amina was not agreed to send Hamid to Idgah, Hamid was telling that I promise you grandma, I will go carefully, and at first I will return among all my friends. Don't be scared. I'll be take care of myself. मैं अपनी हमीद यहाँ पे दादी से बोलता है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा और सावधान होकर मैं जाऊंगा ईदगाह में और सबसे पहले मैं लौट कर आऊंगा. अम्मा आप मत डरिए. अमीना ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी? अमीना ने अल्लाह से दुआ मांगी कि जिंदगी खैरियत से रहे, बच्चे को खुदा सलामत रखे. So though this Hamid lost his parents, and Amina also at very old age, it is very old age for her. So she was praying to Allah that, oh God, please save my grandson, and just give blessings to him. अमीना को फहीमन के कपड़े सीने से कितने पैसे मिले? अमीना को फहीमन के कपड़े सीने से 8 आने पैसे मिले. हमीद किसके साथ मेले में गया? हमीद अपने मित्र
महमूद, मोहसिन और नूर के साथ मेले में गया। शहर की सड़कों के दोनों ओर क्या था? शहर की सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। पेड़ों में क्या क्या लगी हुई थी? पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई थी। बच्चों ने माली को क्या बनाया? उल्लू बनाया। द गार्डनर फुल। क्लब घर में क्या होता था? क्लब घर में जादू होता है। जादू मीन्स मैजिक शो वाज गोइंग ऑन इन क्लब हाउस। मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है, बड़े बड़े तमाशे होते हैं। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, मैं भी खेलती हैं। सो यूजुअली क्लब हाउस इज meant for very rich people. So where men women they will come to relax their mind, they will play something and they will have fun. महमूद ने क्या कहा? क्लब घर में मैं टेनिस खेलती है। यह जानकर महमूद ने कहा कि हमारी अम्मी जान बैट को पकड़ भी नहीं पाएंगी, उसका हाथ कांपने लग जाएगा। So Mahmoud is the one of the friend of Hamid. Whenever he heard about that rich ladies or ma'ams, they will come and they will used to play here at that time tennis in clubhouse. At that time he was telling that my mother cannot hold the bat properly. Whenever she will hold, her hands will be severe. रात में मिठाइयाँ कौन खरीदते हैं? रात में मिठाइयाँ जिन्नत खरीदते हैं। बुढ़िया का क्रोध क्यों स्नेह में बदला? बुढ़िया means Amina. So initially Amina was very angry. After that, this angerness will converted to love and affection. Why? Because अमित जो उसे उसकी दादी ने 3 पैसे दिए थे, उन 3 पैसों से ना ही उसने कोई खिलौना खरीदा, ना ही कुछ खाना या मिठाई खाई। उसने उस 3 पैसों से चिमटा खरीद लिया। तो जब वो लाकर उस चिमटे को अपनी दादी को दिखाता है और क्यों वो लाया ये बताता है कि कैसे उसके दादी के हाथ जलते हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता है इसलिए लाया। तो अमीना पहले बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वो उसे देता है कि उसकी उंगलियां जल जाती हैं, तो ये जो बूढ़ी दादी की तकलीफ अपने पोते से दिखी नहीं जाती है। जब वो सारे बात बखान कर बोलता है तो उससे सुनने के बाद उसका जो गुस्सा था, क्रोध था, वो प्यार में या स्नेह में बदल जाता है। So this is all about the question answers and summary of just a lesson Idgaha. So children, please learn this 2 marks question answer and last question, this बुढ़िया का क्रोध क्यों स्नेह में बदल गया, और who is the writer of this story, then क्लब हाउस में क्या होता था, क्लब घर में क्या होता था। ये कुछ important questions है जिसे आपको पढ़ना होगा। और ईद का मौसम कैसा होता है, ईद के दिन लोग क्या करते हैं, रमजान का महीना क्या होता है, हामिद का स्वभाव क्या होता है, रोजा क्यों रखते हैं, ये सब कुछ important questions है। You have to learn it. I hope children you understood the summary and question answers. So please learn well. Thank you students. Thanks for watching my videos.